Hello everyone, welcome to my English. Today is day 24 of 60 days Rapidex English Speaking Course. आज हम करने वाले हैं कुछ confusing prepositions जो कि place से related होते हैं. So let us begin with day 24. Day 24. कौन कौन से prepositions पर हम टच करने वाले हैं वो है from, by, with, in, of, for, in and into, against, on, over, about. From is what we are going to start with today. लड़का स्कूल से अनुपस्थित था. Say is from. The boy was absent from school. आपको धूम्रपान से बचना चाहिए. You must abstain. Abstain मतलब refrain, दूर रहना चाहिए. Abstain और refrain from smoking. You must avoid smoking. Avoid करना भी उससे दूर रहना होता है. मेरे चाचा आसाम से आए हैं. My uncle has come from Assam. या अगर मैं ये कहूँ I am from Assam, तो मैं आसाम से हूँ. वह मुझे जाने से रोकता है. He stops me from going there. He prevents me from going there. से रोकता है. From going there. Right? Now we are going to see by. उसकी कंपनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है. अब दिन दुनी रात चौगनी का मतलब एक इडियम है, तो उसको हम बोलेंगे his company is progressing by leaps and bounds. Leaps and bounds मतलब दिन दुनी रात चौगनी. मेरे पिताजी मेरे साथ थे. या तो आप बोलोगे I was with my father, या आप बोलोगे I was accompanied by my father. Accompanied के साथ हम by लगाते हैं. Accompanied by my father. इस खबर से घबराइए नहीं. Please don't get disturbed by this news. Disturbed by this news. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ. He was highly amused. Amused means थोड़ा funny, entertaining. He was highly amused by my story. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए. चाहिए should. This packet should reach Mumbai by Monday. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते. You don't know how to deal with others. Deal के साथ हम with लगाएंगे. How to deal with others. लोगों के साथ कैसे डील करना है तुम नहीं जानते. How to deal with others you don't know. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए. We should be acquainted with English language. Acquainted with, देख रहे हो आप कि से ही आ रहा है, लेकिन आप from नहीं बोलेंगे. Acquainted with English language. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था. He was gifted with a talent for painting. Gifted with. हम उसके व्यवहार से उकता गए. We got fed up with his behavior. मेरा अधिकारी मुझ पर मेहरबान था. My boss was pleased with me. Pleased with me. Now we are going to look at in. वह अपने काम में तल्लीन था. तल्लीन मतलब बहुत ज़्यादा busy होना. He was absorbed in his work or he was busy in his work. शीला एक कान से बहरी है. She is deaf in one ear. तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए. You must be polite in your behavior. In your behavior. वह संगीत में दक्ष है. दक्ष मतलब वेल वर्स्ड है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है म्यूजिक में. He is an expert in music or he is well versed in music. Of. उसे सफलता का पूरा भरोसा था. He was sure of success. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है. He is fully aware of his weakness. उसे आम बहुत भाते हैं. He is fond of mangoes. Fond of. I am fond of cooking. I am fond of dancing. I am fond of listening to music. कोई चीज़ जब हमें पसंद होती है तो हम उसे fond of कह सकते हैं. और उसमें सिर्फ हॉबी के साथ साथ खाने की चीज़ें, घूमने की जगहें, ये सब भी आ सकती हैं. उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है. He reminds me of his brother. Reminds me of his brother.
यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। It is a matter of great honor for me. मेरे लिए for me. सम्मान की बात है, matter of great honor. Now come to for. क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? Is she preparing for the test or is she studying for the test? मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। I always care for him and take care of him. I always take care of him. I always care for him. ठीक है? So take care के साथ हम of लिखते हैं and care के साथ हम for लिखते हैं। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। He apologized to me for his misbehavior. Apologize to me for his misbehavior. उसे पैसे का हिसाब देना होगा। He'll have to account for the money. 2. वह धूम्रपान का आदी हो गया है। He is addicted to smoking. Addicted to. उसी तरह से contrary to. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। He acted contrary to the rules. मतलब rules के विपरीत या विरुद्ध आचरण किया। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। Some people prefer wealth to health. उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। He referred the matter to the higher authorities. Into. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। The police inquired into the matter. The police looked into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags. वह कमरे में गया। He went into the room. Against. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसके बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। The doctor warned him against working too hard. Now on. उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। His criticism is not based on facts. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हैं? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. Over. बर्फ सड़क पर फैली है। Snow is scattered over the road और ice is scattered over the road. पुल नदी के ऊपर है। The bridge is over the river. Now about. माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। The mother is worried about her son's health. वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। She was inquiring about Seema. Now we are coming to phrase preposition. Phrase मतलब a group of words. So जब prepositions एक group of words की तरह use होते हैं उन्हें phrase prepositions कहते हैं। मैं जाने ही वाला था। I was about to go. वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। He succeeded by dint of hard work. Dint of hard work. हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. Try to speak the sentences after I have spoken. This will give you a lot of spoken practice. हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। We should act in favor of our friends. हमें जीने के लिए काम करना होगा। We must work in order to live. बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। My friend came to see me in spite of being very busy. क्या तुम मेरी घड़ी के बदले अपनी साइकिल दे सकते हो? Can you give me your bicycle in exchange for my watch? उसे मीटिंग के बीच में से अचानक जाना पड़ा। He had to leave suddenly in the midst of the meeting. और in the middle of the meeting. पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज had to give up studies for want of money. याद रखें, क्रिया आदि शब्दों के साथ में
कुछ खास prepositions का प्रयोग होता है, उनका अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए। कुछ शब्दों के साथ कुछ खास prepositions always लगते हैं, तो इनको हम कहते हैं collocations। कुछ वर्ड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप उनको किसी और के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ अटपटा सा लगता है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। सो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक बार इनको फिर से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके सेंटेंसेस बनाइए। एब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ फ्रॉम, अकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाई के साथ विद, प्रिपेयर, केयर, अपोलोजाइज के साथ फॉर, अडिक्ट, प्रिफर, रेफर के साथ टू और रिलाई के साथ ऑन। दूसरी बात, प्रेपोजिशंस के कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं। फ्रेज प्रेपोजिशन ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, जैसे बाय डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिडस्ट, ऑन द ईव ऑफ आदि के प्रयोग ऊपर के वाक्यों में देखिए। ऐसे सैकड़ों फ्रेज प्रेपोजिशंस अंग्रेजी में प्रचलित हैं। तो अगर आप अपना वोकैबुलरी बैंक बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्रेज प्रेपोजिशंस की एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाकर उसके सेंटेंसेस बनाएं और याद करें, ताकि आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में प्रयोग में ला सकें। तभी आप उसको अच्छे से बोल पाएंगे और अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं डे 25 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय।